کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ تمہیں حکم نہیں دیتے، پھر بھی آہستہ آہستہ تمہارے فیصلے اپنی مرضی سے کروانے لگتے ہیں۔ کبھی وہ محبت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ناراضگی کا، کبھی احساس جرم دلاتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمہیں دیر سے احساس ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر رہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے تو آج کی یہ 5 نشانیاں پہچان لو، کیونکہ کنٹرول ہمیشہ حکم دینے سے شروع نہیں ہوتا۔ جو شخص تمہیں اپنی مرضی سے چلانا چاہے اسے سب سے پہلے یہ دکھاؤ کہ تم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ محبت وہ نہیں جو تمہیں بدلنے پر مجبور کرے، محبت وہ ہے جو تمہیں تم رہنے دے۔ ہر مشورہ خیر خواہی نہیں ہوتا، کچھ مشورے صرف تمہاری سمت اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ جو تمہارے انکار سے ناراض ہو جائے، شاید اسے تمہاری رضامندی نہیں، تم پر اختیار چاہیے تھا۔ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ لوگوں کو سمجھاتے رہو گے تو ایک دن اپنی ہی پسند پر شک کرنے لگو گے۔ کچھ لوگ تمہیں قید نہیں کرتے، بس اتنا ڈراتے ہیں کہ تم خود اپنے قدم روک لیتے ہو۔ جس رشتے میں اپنی مرضی رکھنے کے لیے ہر بار اجازت مانگنی پڑے، وہاں محبت سے زیادہ اختیار سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا ناراض ہونا ہمیشہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ تم غلط ہو، کبھی تمہاری حد بھی کسی کو تکلیف دے سکتی ہے۔ جو شخص تمہاری ہر پسند میں خامی نکالتا ہے وہ شاید تمہیں سمجھنے سے زیادہ تمہیں بدلنا چاہتا ہے۔ زندگی میں کچھ فیصلے غلط بھی ہو جائیں تو بہتر ہے کہ وہ تمہارے اپنے ہوں، کسی اور کی مرضی کے صحیح فیصلوں سے۔ جو تمہیں گلٹ دے کر اپنی بات منواتا ہے وہ تمہاری محبت نہیں، تمہاری کمزوری استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ہر بار خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں سمجھنا چاہتا ہے وہ تمہاری خاموشی بھی سمجھ لے گا۔ کچھ لوگ تمہیں کھونا نہیں چاہتے مگر تمہیں آزاد بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی خوشی کسی دوسرے کے موڈ سے باندھ دو تو پھر تمہاری زندگی کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جو شخص تمہاری حدود کا مذاق اڑائے اسے اپنی زندگی میں مزید جگہ دینے سے پہلے سوچو۔ کبھی کبھی نہیں کہنا کسی رشتے کو توڑتا نہیں، صرف یہ بتاتا ہے کہ رشتہ کس بنیاد پر قائم تھا۔ جو شخص تمہاری آزادی سے پریشان ہو اسے تمہاری قربت سے زیادہ تم پر اختیار کی خواہش ہو سکتی ہے۔ ہر خاموشی رضامندی نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان ہر بات پر جنگ نہیں چاہتا۔ کسی کے خوف کی وجہ سے اپنی زندگی روک دینا آخر کار اپنے ہی خوابوں سے ناانصافی بن جاتا ہے۔ جو تمہاری کامیابی کے بعد تمہارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا چاہے اسے اپنی حد وہیں یاد دلا دو۔ اچھے لوگ بھی کبھی غلط مشورہ دے سکتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ اپنی عقل کو بھی زندہ رکھو۔ جو تمہیں ہر وقت بتائے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، ایک دن اس سے یہ بھی پوچھ لینا کہ تمہیں خود کیا چاہیے۔ کسی کے ساتھ وفادار رہو مگر اپنی ذات سے بے وفائی کر کے نہیں۔ جو تمہیں اپنی مرضی سے جینے دے وہ تمہاری زندگی میں جگہ کا زیادہ مستحق ہے بنسبت اس کے
जो तुम्हें हर कदम पर रोकना चाहे। बाज लोग तुम्हारी मदद के नाम पर तुम्हारी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में ले लेते हैं। फर्क पहचानना सीखो। तुम्हें हर शख्स को खुश रखने के लिए अपनी शख्सियत का कोई हिस्सा कुर्बान करने की जरूरत नहीं। जो शख्स तुम्हारी आजादी को बदतमीजी और तुम्हारी खुद एतमादी को गरूर कहे, उसकी तारीफें सुनने से पहले उसका मकसद समझो। जिंदगी में सुकून तब आता है जब तुम हर फैसले पर दूसरों की मंजूरी ढूंढना छोड़ देते हो। जिस दिन तुमने अपनी हदूद पर शर्मिंदा होना छोड़ दिया, उसी दिन बहुत से लोगों का तुम पर असर खत्म हो जाएगा। अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आखिर में तुम्हें अपने फैसलों के साथ जीना है, दूसरों की ख्वाहिशों के साथ नहीं। जो शख्स तुम्हें हर कदम पर बताए कि क्या सही है, कभी ये भी देखो कि उसे तुम्हारी भलाई चाहिए या अपनी मर्जी। हर रिश्ता कुर्बानी मांगता है, मगर वो कुर्बानी जो तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा कर दे, उस पर जरूर सोचो। किसी को खुश रखने के लिए अपनी पसंद मुसलसल दबाते रहोगे तो एक दिन तुम्हें अपनी ही आवाज अजनबी लगने लगेगी। जो तुम्हारे फैसले का एहतराम नहीं करता, उसे तुम्हारी वजाहत से ज्यादा अपनी मर्जी की फिक्र हो सकती है। बाज लोग तुम्हें मोहब्बत से नहीं, अपनी जरूरत से बांध कर रखते हैं। अपने दिल की सुनना खुद गर्जी नहीं, हर बार दूसरों की आवाज को अपनी आवाज बना लेना भी दानिशमंदी नहीं। जो शख्स तुम्हें डरा कर करीब रखना चाहे, उससे दूरी कभी कभी सबसे बड़ी आजादी बन जाती है। किसी की नाराजगी से बचने के लिए हर बार खुद को बदलना शुरू कर दो तो आखिर में आईना भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जो शख्स तुम्हारी राय सुनकर भी फैसला हमेशा खुद करे, शायद वो गुफ्तगू नहीं, इख्तियार चाहता है। रिश्ते वहां खूबसूरत रहते हैं जहां मोहब्बत के साथ एक दूसरे की आजादी की भी कदर की जाए। किसी के अच्छे बर्ताव का मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपने हर फैसले का मालिक बना दो। कुछ लोग तुम्हें हर बार गलत साबित करते हैं कि आखिरकार तुम सही होते हुए भी खुद पर शक करने लगते हो। अपनी हदूद वाज़ेह करने के बाद जो शख्स तुमसे दूर हो जाए, शायद उसे तुम्हारी शख्सियत नहीं, तुम्हारी बेहद दस्तयाबी पसंद थी। हर ताल्लुक में अपनी जगह बनाओ, मगर अपनी जात की कीमत पर किसी के दिल में जगह मत खरीदो। जो तुम्हारी आजादी को खतरा समझता है, उसे तुम्हारी मजबूती भी शायद कभी पसंद न आए। कभी किसी के बहुत ज्यादा ख्याल रखने के पीछे ये भी देखो कि क्या वो तुम्हें फैसले करने की आजादी भी देता है। तुम्हें अपनी जिंदगी के हर कदम का हिसाब देने की आदत पड़ जाए तो दूसरों की इजाजत तुम्हारी जरूरत बन जाती है। जो शख्स तुम्हारी कमजोरी जानता हो, उसके सामने अपनी हर हद खत्म कर देना मोहब्बत नहीं, खुद को गैर महफूज करना है। अपनी मर्जी से जीने का हक मांगना नहीं पड़ता, उसे समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है। जो तुम्हारी खुशी को सिर्फ तब कबूल करे जब उसमें उसकी मर्जी शामिल हो, वहां मोहब्बत के साथ इख्तियार भी मौजूद हो सकता है। कभी कभी इंसान को किसी शख्स से नहीं, उस खौफ से आजाद होना पड़ता है कि वो शख्स नाराज हो जाएगा।
तुम्हारी जिंदगी में हर करीबी शख्स तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का हक नहीं रखता। जो शख्स तुम्हें हर बार अपने फैसले पर शर्मिंदा करे, उसकी राय को अपनी हकीकत समझने की गलती मत करना। मोहब्बत में समझौता करो, मगर अपनी शनाख्त का सौदा कभी मत करो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इतने सवाल छोड़ देते हैं कि तुम अपने जवाब भी दूसरों से पूछने लगते हो। जिस ताल्लुक में तुम्हें खुद बनने की इजाजत ना हो, वहां साथ होने के बावजूद इंसान अंदर से तन्हा हो जाता है। किसी की मोहब्बत तुम्हारी आजादी छीनने का जवाज नहीं, और तुम्हारी आजादी किसी की मोहब्बत खत्म करने की वजह भी नहीं होनी चाहिए। जब तुम हर फैसले से पहले ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, तब तुम्हें अपनी असल जिंदगी महसूस होना शुरू होती है। अपनी जिंदगी पर इख्तियार रखो, मगर दूसरों की जिंदगी पर कब्जा मत करो। असल ताकत यही है कि तुम आजाद भी रहो और इंसाफ भी करो। जो लोग तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके ये 5 तरीके समझ लो। नंबर 1, मोहब्बत को हथियार बनाना। वो तुम्हारी मोहब्बत को समझने की बजाय उसी को इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाने लगते हैं, ताकि तुम उनकी नाराजगी से डर कर अपनी मर्जी छोड़ दो। नंबर 2, एहसासे जुर्म दिलाना। तुम अपनी मर्जी का फैसला करो तो वो ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि तुम्हें लगने लगता है जैसे तुमने उनके साथ बहुत गलत किया है। नंबर 3, तुम्हारे फैसलों पर शक डालना। वो बार बार तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद तुम खुद सही फैसला नहीं कर सकते, ताकि आखिरकार तुम हर मामले में उनकी राय लेने लगो। नंबर 4, नाराजगी का खौफ पैदा करना। कुछ लोग बहस नहीं करते, बस नाराज हो जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि तुम उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए वो खामोशी को भी दबाव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, तुम्हारी आजादी को खुद गर्जी कहना। जब तुम अपनी हदूद बनाते हो तो वो तुम्हें बदल गया, खुद गर्ज या बेहिस कह सकते हैं। हकीकत ये है कि हर शख्स को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का इख्तियार है। जो तुम्हें अपनी मर्जी से जीने नहीं देता, उसे अपनी जिंदगी पर इतना इख्तियार मत दो कि तुम खुद को ही भूल जाओ। किसी की नाराजगी से बचने के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना आखिरकार खुद से नाराज कर देता है। तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला सबको पसंद आए ये जरूरी नहीं, बस इतना काफी है कि तुम्हें अपने फैसले पर सुकून हो। जो तुम्हारी आजादी का एहतराम नहीं करता, उसे अपनी जिंदगी में हदूद समझाने से मत घबराओ। याद रखो, अपनी जिंदगी का इख्तियार अपने हाथ में रखना खुद गर्जी नहीं, अपनी जात की जिम्मेदारी है। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि कोई शख्स तुम्हारी मर्जी, फैसलों या जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, तो कमेंट में "अब मैं अपनी हद जानता हूं" लिखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करो जिसे ये बातें समझने की जरूरत है, और ऐसी ही दिल को छूने वाली हिकमत की बातों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।